Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter Accounting for Not-for-Profit Organizations under Unit 3, Chapter 3 for Intermediate Second Year Students for Telangana State Board of Intermediate Education. In this video, we'll be discussing 3 important points to be remembered for preparing Receipts and Payments account. Receipts and Payments account बनाने के लिए 3 important point सीखना ज़रूरी है जो ये वीडियो में सीखेंगे. Here we have a question. Prepare receipts and payments account of Abdul Habib Sahab Sports Club for the year ended 31st March 2020. And here it is given as opening balance of cash 50,000, opening bank balance 70,000, subscriptions collected for 2018-2019 1 lakh, for 2019-2020 1 lakh, for 2020-2021 1 lakh, legacies 2 lakhs, salaries paid 20,000, furniture purchased 1 lakh. Now we are required to prepare receipts and payments account, and here it is given as cash in hand at close 2 lakh rupees. So here is the solution. Receipts and payments account of Abdul Habib Sahab Sports Club for the year ended 31st March 2020. So a problem is related to the year 2019-2020 because the year which has been specified in the question is 2020. So 2020 से पहले क्या आता 2019. So current year is 2019-2020. So 2018-2019 becomes previous year and 2020-2021 becomes next year. So let us start the solution. First, it is given as opening balance of cash 50,000, opening bank balance 70,000. The format for receipts and payments account is receipts amount rupees, payment amount rupees. Towards extreme left will be rating DR debit, towards extreme right will be rating CR credit. So opening balance will be recorded as to balance brought down. Cash, opening balance of cash कितना है 50,000 है. Opening bank balance कितना है 70,000 है. So this will be shown as to balance brought down, cash 50,000, bank 70,000. Next we have subscriptions collected for 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2021. अपना जो प्रॉब्लम है वो 2020 पे ख़त्म हो रहा, मतलब 2019 में स्टार्ट हुआ, तो करंट ईयर क्या है 2019, 2020. बट यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस आ रहे वो 2018-19 प्रीवियस ईयर के भी आ रहे, 2019-20 करंट ईयर के भी आ रहे, 2020, 2021 नेक्स्ट ईयर के भी आ रहे. सो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वी शुड रिकॉर्ड any item whether it is related to previous year, current year और next year. जब कभी भी आप receipts and payments account बनाते आप कोई भी item लिख सकते हैं, चाहे वो previous year से related रहने दीजिए, current year से related रहने दीजिए या next year से related रहने दीजिए. So in this problem we'll be recording the subscriptions amount for all these 3 years 2018-19, 19-20, 20-21. So this will be shown on receipt side as two subscriptions collected for 2018 to 2019 1 lakh, 2019 to 2020 1 lakh, 2020 to 2021 1 lakh. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी लिखे, करंट ईयर का अमाउंट भी लिखे, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी लिखे. नेक्स्ट वी हैव लेगेसीज 2 लाख रुपीस. लेगेसीज का मतलब वसीयत का पैसा. द अमाउंट विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन. सो ये वसीयत का जो पैसा है ये सिर्फ एक बार आता, तो ये कौन से नेचर में आता, कैपिटल नेचर में आता. सो वाइल प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इट इज इमटेरियल वेदर द अमाउंट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और इट इज ऑफ कैपिटल नेचर. सिर्फ अगर पैसा आ रहा तो रिसिप्ट्स में लिखना है, पैसा जा रहा तो पेमेंट्स में लिखना है. सो लेगेसीज इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, इवन देन दिस विल बी शोन एज रिसिप्ट. तो यहाँ पे बता रहे हैं आप 2 लेगेसीज 2 लाख रुपीस. नेक्स्ट आफ्टर लेगेसीज वी हैव सैलरीज पेड 20,000 रुपीज. सो सैलरीज पेड, सैलरी का क्या है कैलकुलेशन कैसा रहता है, एवरी मंथ रहता. सो विल बी पेइंग सैलरीज एवरी मंथ, तो ये रेवेन्यू नेचर में है. सो दिस विल बी शोन ऑन पेमेंट साइड एज बाय सैलरीज 20,000 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर सैलरीज वी हैव फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख रुपीज. सो फर्नीचर जो खरीद रहे हैं आप ये कैपिटल नेचर का रहता, बिकॉज फर्नीचर विल बी परचेज्ड ओनली वंस. इवन इफ यू वांट टू परचेज सम अनदर फर्नीचर वी विल बी परचेजिंग ए न्यू फर्नीचर नॉट दी ओल्ड वन. तो हम जो अगर दूसरा फर्नीचर खरीद रहे भी तो पहला जो फर्नीचर खरीदे वो नहीं खरीदेंगे, दोबारा जो खरीदेंगे वो दूसरा फर्नीचर खरीदेंगे. सो इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर. तो यहाँ पे इवन देन एज वी आर परचेजिंग फर्नीचर विल बी पेइंग कैश फॉर इट, सो कैश इज गोइंग, सो दिस विल बी शोन एज बाई फर्नीचर अकाउंट. तो यहाँ पे जो नेचर है सैलरीज का जो नेचर है वो रेवेन्यू नेचर है, फर्नीचर का जो नेचर है वो कैपिटल नेचर है, बट दोनों में पैसे जा रहे. सो सैलरीज भी आप पेमेंट्स में बताए, फर्नीचर भी आप पेमेंट्स में बता रहे. सो समझ में क्या आया, जब आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते वो रेवेन्यू नेचर का अमाउंट है तो भी लिखना है आपको, कैपिटल नेचर का अमाउंट है तो भी लिखना है. नेक्स्ट आफ्टर फर्नीचर परचेज वी हैव कैश इन हैंड एट क्लोज.
एट क्लोज का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस को हम क्या कर रहे थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब क्लोजिंग बैलेंस को क्या करेंगे हम, बाई बैलेंस कैरिड डाउन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस वाज रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो क्लोजिंग बैलेंस विल बी शोन एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बट ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों का था, बट क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है, सिर्फ कैश इन हैंड 2 लाख रुपीज। सो ओनली क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश इज गिवन, दैट इज 2 lakh rupees, and now we have to find the closing balance for bank. So how to find the closing balance for bank? First we'll be doing the total on receipt side. The total on receipt side is 2 plus 1 3 4 5 5 lakhs plus 70,000, 5 lakhs 70,000 plus 50,000, 6 lakhs 20,000. So the total on receipt side is 6 lakhs 20,000, whereas the total on payment side is 2 plus 1 3 lakh 20,000. So the total on receipt side is 6 lakhs 20,000, whereas the total on payment is only 3 lakhs 20,000. तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 6 lakhs 20,000 ज्यादा है. So as 6 lakhs 20,000 is more than 3 lakhs 20,000, 6 lakhs 20,000 will be recorded on both the sides, receipt side as well as on payment side. Now subtracting 3 lakh 20,000 from 6 lakhs 20,000, we are left out with an amount of 3 lakhs. So which will be the closing balance of bank. So now let us discuss those three important. अब ये जो बैंक 3 lakhs जो अमाउंट आया, ये आपका आंसर है. ये आंसर कैसा है आपको, we have subtracted the total payments from total receipts. So always remember that when we solve the problem for receipts and payments account, the total on receipt sides will be more than the total of payments, because one cannot spend more than what he has. एक इंसान के पास जो पैसा है उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, तो इसीलिए रिसीप्ट्स का टोटल हमेशा ज़्यादा आएगा, पेमेंट्स का टोटल कम आएगा, और जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक. अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है तो जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक रहेगा. Now let us discuss those three important points which are to be remembered for preparing receipts and payments account. Receipts and payments account बनाने के लिए 3 important points याद रखना जरूरी है, और वो 3 important points ये है. It always starts at opening balance. Receipts and payments always starts at opening balance, which will be shown as to balance brought down. कैश जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रहता वो अमाउंट बताएंगे, बैंक जो ओपनिंग बैंक बैलेंस रहता वो अमाउंट बताएंगे. So first point for preparing receipts and payments account is that it starts at opening balance and ends at closing balance. तो हमेशा receipts and payments opening balance to balance brought down पे start होता, closing balance by balance carried on पे खत्म होता. This was the first important point to be remembered for preparing receipts and payments account. Now let us discuss second important point that is to be remembered for preparing receipts and payments account. Second important point क्या है, अपने को क्वेश्चन में कौन सी ईयर स्पेसिफाई करा हुआ है ये देख लेना. अपने को क्वेश्चन में कौन सा ईयर स्पेसिफाई करा हुआ है, द ईयर 2020 इज स्पेसिफाइड. सो 2020 से एक नंबर पहले क्या आता, 2019 आता. सो आवर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ईयर 2019 टू 2020 विच विल बी कंसिडर्ड एज करंट ईयर. अब 2019-2020 जो है ये अपना करंट ईयर का अमाउंट रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा. अब ये जो भी ट्रांजैक्शन है 2019-2020 के है. अब 2019 से पहले 18 और 2020 से पहले 2019 आता, ये जो है ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट है. 2019 के बाद 2020, 2020 के बाद 2021, ये जो है ये नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शंस हैं. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एनी अमाउंट कैन बी रिकॉर्डेड, whether it is related to previous year, whether it is related to current year, or it is related to next year. तो समझ में क्या आया, जब आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे कौन सा भी अमाउंट लिख सकते हैं, चाहे वो गुज़िश्ता साल का प्रीवियस ईयर का अमाउंट रहने दीजिए, या फिर अब जो साल चल रहा करंट ईयर का अमाउंट रहने दीजिए, या आने वाले साल का नेक्स्ट ईयर का अमाउंट रहने दीजिए, कौन सा भी अमाउंट लिख सकते हैं. सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड का मतलब पैसे आ रहे, तब यहाँ पे आपको 1 लाख 2018-19 प्रीवियस ईयर के आ रहे, 1 लाख 2019-20 करंट ईयर के आ रहे, 1 लाख 2020-21 नेक्स्ट ईयर के आ रहे. तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या करेंगे, आप तीनों अमाउंट्स बताएंगे. So here it is shown as 2 subscriptions collected for 2018-19 1 lakh, 19-20 1 lakh, 20-21 1 lakh. So इसका दूसरा पॉइंट ये था. पहला पॉइंट क्या था, receipts and payments always starts at opening balance to balance brought down and ends on closing balance by balance carried down. This was the first important point. What was the second important point? Any amount should be recorded, whether it is of previous year, whether it is related to previous year, it is related to current year, or it is related to नेक्स्ट ईयर. चाहे वो गुज़िश्ता साल का अमाउंट रहने दीजिए, ये साल का अमाउंट रहने दीजिए, या आने वाले साल का अमाउंट रहने दीजिए. अगर पैसे आ रहे तो रिसिप्ट्स में लिखना है, पैसे जा रहे तो पेमेंट्स में लिखना है. दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. कमिंग टू थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज दैट एन अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट और पेमेंट irrespective of its nature, whether it is of revenue nature or of capital nature. अगर वो अमाउंट रेवेन्यू नेचर का है तब भी आप लिखेंगे,
कैपिटल नेचर का है तब भी लिखेंगे। व्हाट इज रेवेन्यू नेचर? विच इज रिकरिंग इन नेचर, जो हमेशा रिपीट होते रहता उसको हम रेवेन्यू नेचर बोलेंगे। व्हाट इज कैपिटल नेचर? जो चीज़ रिपीट नहीं होता, जो नॉन रिकरिंग इन नेचर रहता उसको हम कैपिटल नेचर बोलेंगे, जो चीज़ सिर्फ एक बार होती। जैसे कि यहाँ पे लेगेसीज में पैसा आ रहा ऑर्गेनाइजेशन को, लेगेसीज किसको बोलते हैं? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। वो ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट मिल रहा, किसी की वसीयत के मुताबिक जो पैसा मिल रहा, वो पैसे को हम लेगेसीज बोल के बोलेंगे। तो लेगेसीज, वसीयत का पैसा कितने बार आता? सिर्फ एक बार आता। तो ये कौन से नेचर में आता? कैपिटल नेचर में आता। बट while preparing receipts and payments account we don't consider whether it is of revenue nature or capital nature। revenue nature का है तब भी बताएंगे आप, कैपिटल नेचर का है तब भी उसको लिखेंगे। तो लेगेसीज कैपिटल नेचर का है तभी भी आप उसको रिसिप्ट्स में बता रहे। सब्सक्रिप्शंस क्या है? ये रेवेन्यू नेचर का है, इट्स ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो रेवेन्यू नेचर का अमाउंट भी बताएंगे हम, कैपिटल नेचर का अमाउंट भी बताएंगे। उसी तरह पेमेंट्स में देखिए, सैलरी जो पे कर रहे हैं आप, ये रेवेन्यू नेचर का रहेगा बिकॉज इट इज पेड फ्रीक्वेंटली, दैट इज एवरी मंथ। सो ये रेवेन्यू नेचर का है, इसको हम पेमेंट्स में बता रहे बाई सैलरीज। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर जो खरीदते हैं वो सिर्फ एक बार खरीदते हैं आप। तो एक बार जो चीज़ खरीदते या फिर एक बार जो पेमेंट होती वो कौन से नेचर में आती? कैपिटल नेचर में आती। सैलरी का पेमेंट हर बार होता है, ये रेवेन्यू नेचर है। फर्नीचर का पेमेंट एक बार होता है, ये कैपिटल नेचर है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज दैट any amount should be recorded irrespective of its nature, whether it is of revenue nature or of capital nature. So I repeat, the three important points to be remembered for preparing receipts and payments accounts are: receipts and payments account always starts with opening balance to balance brought down and ends at by balance carried down, closing balance। तो opening balance पे शुरू होता, closing balance पे खत्म होता। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है? एनी अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। गुज़िश्ता साल का अमाउंट भी लिख सकते, ये साल का अमाउंट भी लिख सकते, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी लिख सकते। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? एन अमाउंट कैन बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, हमेशा होने वाली चीज़ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रिसिप्ट्स में सब्सक्रिप्शन हमेशा आने वाला अमाउंट है और लेगेसीज कैपिटल नेचर कभी कभार होने वाला अमाउंट है। तो यहाँ पे हम हमेशा आने वाला अमाउंट भी लिखे रिसिप्ट्स में, कभी कभार आने वाला अमाउंट लेगेसीज भी रिसिप्ट्स में लिखे। उसी तरह व्हेन कमिंग टू पेमेंट साइड, सैलरीज जो हर बार पे करते हैं ये रेवेन्यू नेचर का है, ये भी बताए। फर्नीचर जो एक बार खरीदते हैं ये कैपिटल नेचर का है, ये भी बताए। सो द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आर: इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस, एंड्स एट क्लोजिंग बैलेंस। Previous year, current year, next year, all three amounts should be recorded. Revenue nature and capital nature, both the nature amount should be recorded. So ये जो three important points receipts and payments के हैं, इसके बाद से जो टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें ये तीनों पॉइंट्स अपोजिट हो जाएंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में हो रहा क्या? इट स्टार्ट्स एट ओपनिंग बैलेंस, एंड्स एट क्लोजिंग बैलेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पॉइंट क्या रहता? उसमें ना ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। आई रिपीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस भी लिख रहे, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख रहे। वी आर राइटिंग ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस while preparing receipts and payments account, but at the time of preparing income and expenditure account we neither record opening balance nor we record closing balance। फिर receipts and payments का second point क्या था? we have recorded previous year amount, current year amount and next year amount, but while preparing income and expenditure account we record only current year amount। any amount which is included in current year belonging to previous year or next year, it will be subtracted। तो receipts and payments का second point क्या था? last year, current year, next year सब amount लिख रहे थे आप, बट जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे। अगर करंट ईयर के अमाउंट में कुछ प्रीवियस ईयर का अमाउंट या नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूड मिला हुआ है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? एनी आइटम हैज़ बीन रिकॉर्डेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का है तभी भी आप लिख लिए, रेवेन्यू नेचर का है तभी भी आप लिख लिए। बट जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे सिर्फ हमेशा होने वाली चीज़ रेवेन्यू नेचर का आइटम लिखेंगे, कभी कभार होने वाली चीज़ कैपिटल नेचर का आइटम छोड़ देंगे। सो रिमेंबर दीज थ्री पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एज वेल एज द टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जो तीन पॉइंट्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ये थ्री पॉइंट्स अपोजिट हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड होप यू हैव लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.